A few weeks ahead of the Christmas celebration, hundreds of people gathered at the community center of New Delhi's Sacred Heart Cathedral. The occasion was the book release function of आधुनिक भारत निर्माण में ईसाइयत का योगदान, the contribution of Christianity to the making of modern India. Archbishop Anil Joseph Thomas Kotto released the book on Monday. The book is the fruit of the decades-long research and fieldwork of veteran journalist and author Joseph Anthony Gathia. Born in Khandwa district of Madhya Pradesh, 76-year-old Gathia has worked in several newspapers. He is also an author of several books on media, human rights and religious freedom. The necessity of such a book has been long felt due to the prevalence of massive propaganda against Christian missionaries and Christian community in India. The misinformation is being spread by communal forces. A above-mentioned book, the author says, has been written to counter the hateful campaign against the Christian community and present the truth before people, particularly Hindi readers. The book, comprising 420 pages, is written in Hindi. However, the English version and its translation in various regional languages are being done to reach out to larger audience. The book, divided into 11 chapters, discusses several crucial aspects of historical, social and political history of Christian community and the communal threats posing them. A brief history of Christianity, the social reforms of the 19th century, the role of Christian missionaries, the contribution of the Christian community to education, women empowerment, health and making of modern India are some of the important themes discussed in the book. The book also challenges the narrative of the Hindu right and argued that the history of the Christian community is much beyond conversion. Against the propaganda of the Hindu right, the book argues that the history of the establishment of the rule of the law, the social reforms and freedom struggles cannot be complete without acknowledging the crucial role played by Christian community. Speaking at the book release function, Dr. John Dayal, veteran journalist, author and human rights activist, said that the author Joseph Anthony Gathia was an appropriate person to conduct such research as he had been an activist and journalist for a long time. Dr. Dayal said that such a work should have come out much earlier. Joseph tells the world. The book he has written is a rare combination of a writer and an activist. Rarer still is to find a writer, activist, who is also a practicing Christian and proud of his faith. And that is something that Joseph tells the world. The book he has written, I saw the manuscript when he was writing it and later gave me a copy, was a book that should have been written 25 years ago, if not 50 years ago. In these troubled times when we are stressed from every corner, today in the Supreme Court of India, what has happened is a shame for them, but a great threat for the rest of us. Everything ranging from church properties being now vulnerable to priests in particular, pastors, worshippers, house churches, small Christian communities, everybody being vulnerable. And at such a time, to tell Indians and the world what role we have played in this is not just the fact that the Bible has reached out to people, that gospel values are prevalent, that we have opened schools, hospitals, various counts say up to a third of today's infrastructure, and almost 70% at the dawn of independence is because of Christian contribution. What many people still do not know is the contribution in the freedom struggle of India, which eventually led. So right from the Renaissance, which banned sati, among other things, through the freedom struggle, to the hospitals, the first nurses, you name it, there's a Christian who has done it. A book to begin with in Hindi, because if you participated in Christ the King procession,
Just watching them, you would know what percentage of our diocesans come from Chotanagpur and allied areas. Children must certainly buy it so that they, like me, can proudly say that we have a role in the making of this country, our motherland, our homeland. We have a right to live here. We even have a role in the making of the Constitution. And to that extent, we are slightly more than equal citizens. Speaking on the occasion, Joseph Anthony Gathia told the audience about the background of his work. Brothers and sisters, Dr. Jan Dayal, A.C. Michael साहब, चिन्नप्पन साहब और उपस्थित सभी brothers and sisters और Mrs. Barlow, माइनॉरिटी कमीशन, ये किताब लिखने के पीछे एक थोड़ा सा इतिहास है जिसको जानना मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं जब पत्रकार था तो 1974 में मध्य प्रदेश में एक बहुत फेमस जगह है झाबुआ, जिसका नाम अक्सर अखबारों में आता रहता है, और वहाँ पर बहुत टेंस सिचुएशन थी उस समय भी और आज भी है। तो उस समय बहुत सारे हिंदी अखबारों में निकला कि झाबुआ के अंदर ईसाई मिशनरी प्रलोभन दे के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं एज ए जर्नलिस्ट गया, मैं सेक्युलर जर्नलिस्ट था। मैंने पाया कि वहाँ तो एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रही है, एक चुपचाप क्रांति हो रही है। मैंने क्या देखा कि वो आदिवासी जिनको पहले कभी कोई काम नहीं था, उनको मिशनरीज ने दे ट्रेन्ड देम इन न्यू ऑक्यूपेशंस ऑफ नर्सिंग, ऑफ टीचर्स, ऑफ मशीनरी। अच्छा, उसके अंदर रेडियो का बहुत क्रेज था, तो रेडियो मैकेनिक बनाने की ट्रेनिंग दी ना। इसके कारण वहाँ के जो लोकल हिंदू ट्रेडर्स थे उनको लगा कि हमारा व्यवसाय खतरे में है, और इसलिए वो इस प्रकार की बातें फैला रहे थे। वो लड़कियाँ जिनको वो लोग एक प्रकार से स्लेव की तरह ट्रीट करते थे, आदिवासी लड़कियों को, वो शिक्षा प्राप्त कर रही थी। तब मुझे लगा कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन है खासकर हिंदी बेल्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में। उसके बाद मैं लिखता रहा, लेकिन दूसरा मौका आया जब 1995 में अरुण शौरी ने किताब लिखी मिशनरीज कॉन्स्पिरेसी इन इंडिया। वो इतनी डैमेजिंग किताब है कि हमारे सारे जितने हमने काम किए हैं पिछले 500 सालों के अंदर ईसाइयत ने इस देश के अंदर, उसको पूरी तरह धूमिल कर दिया। और उसके बाद ही बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक कैंपेन चलने लगा आरएसएस के द्वारा और संघ परिवार के द्वारा कि ईसाई मिशनरियों की जो सेवा संस्थाएं हैं, इसका मुख्य काम सिर्फ प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करना है। ये किताब, तब मैंने एक रिसर्च शुरू की और सोचा कि अलग अलग क्षेत्रों में होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा में, मेडिसिन में तो हम जानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ें हैं जो चर्च ने की है इतिहास के अंदर, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद जो सबसे जो मूविंग पॉइंट आया मेरे लिए, वो था 2018 में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने महाराष्ट्र में, बम्बई में यह बयान दिया कि देयर वाज नो कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी इन फ्रीडम मूवमेंट। दिस वाज टू मच। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, आई वाज ऑलरेडी डूइंग रिसर्च। तो मैं एक दो मिनट में 2-4 बातें बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आज हर नागरिक को, किसी दलित को, आदिवासी को सड़क पे चलने का जो अधिकार है, सार्वजनिक सड़क पे चलने, हम सोचते रहे हर कोई चल सकता है, नहीं। 1748 तक आम आदमी सड़क पर नहीं चल सकता था। और ये तिरुनेलवेली के अंदर वहाँ पे चर्च में ये रिवोल्यूशन हुआ। वहाँ पर यह हुआ कि कब्रिस्तान उस शहर के एंड में था और ईसाई चर्च इस तरफ था। जब एक क्रिश्चियन की मौत हुई तो वहाँ पर उन लोगों ने अपना ताबूत ले जाना चाहा अक्रॉस द सिटी, तो वहाँ पर सारे हिंदुओं ने रास्ता जाम कर दिया और कई क्रिश्चियंस को मार डाला। लेकिन वो क्रिश्चियन जो नव क्रिश्चियन थे, वो अपने फेथ में इतने पक्के थे कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ से ही प्रोसेशन लेके जाएंगे, ये हमारा अधिकार है। तो कलेक्टर के पास बात पहुंची, उस समय ब्रिटिश शासन था। उनका भाई हम हिंदू मामलों में दखल नहीं देंगे क्योंकि इससे हमारा व्यापार नष्ट हो जाएगा। दैट वाज अ ब्रिटिश कंपनी पॉलिसी। तो
इन क्रिश्चियंस ने और मिशनरीज ने ये कहा कि ये सड़क जो है ये सार्वजनिक पैसे से बनी है. दिस रोड इज मेड विद द पब्लिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू वॉक ऑन इट. ये मामला गवर्नर जनरल तक गया, तार भेजा गया, उस समय तो टेलीग्राफ था, और तार जब सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में थी उसने ये निर्णय दिया कि यदि ये सड़क सरकारी पैसे से बनी है तो भारत में रहने वाले हर भारतीय को इस पर चलने का अधिकार है, और तब वो डेड बॉडी ले गई. तो ये राइट टू वॉक ऑन पब्लिक रोड वाज इनिशिएटेड बाय द चर्च. ये बहुत कम लोगों को जानकारी है. दूसरी बात कि अक्सर हम आजकल किताबों में यदि सामाजिक सुधार की बात आती है, सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो उसके अंदर सिर्फ ये कहा जाता है राम मोहन राय ने शुरू किया. हर जगह राम मोहन राय का नाम लेते हैं, लेकिन राम मोहन राय ने सती प्रथा के बारे में 1814 के अंदर काम शुरू किया, जबकि विलियम कैरी ने 1892 में जब वो भारत आए उन्होंने देखा और उन्होंने पहली बार एक रिपोर्ट तैयार की, और 1802 के अंदर उन्होंने वो 1793 में वो भारत आए, 1802 में उन्होंने एक रिपोर्ट पहले सती प्रथा को बैन करने के लिए दिया. तो जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड से 1814 में वापस आए भारत, तब उन्होंने विलियम कैरी की वो रिपोर्ट पढ़ी और तब उन्होंने वो सती प्रथा के बारे में काम करना शुरू किया. तो ये इतिहास है हमारा कि वी वर द इनिशिएटर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया. इसके बाद आप आइए, हम कहते कि बंगाल में जो जागरण हुआ, मतलब न्यू रिनेसा इन बंगाल, इट वाज गिफ्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज. जो हमारे जेजुइट स्कूल्स के अंदर, जो जेजुइट कॉलेजेस थे, जेजुइट स्कूल थी, उसके अंदर फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी के बारे में बात की गई, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ था. 1898-99 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, उसका ये नारा हमारे चर्च के स्कूलों में ये पढ़ाया जाता था और किसी हिंदू स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था. उससे प्रभावित होकर के बंगाल के नवयुवकों ने, हिंदू नवयुवकों ने, और वो भी ब्राह्मण नवयुवकों ने ये कहा कि ये जो चर्च जो बात कर रहा है इक्वलिटी की, ये सही है, और इस प्रकार से रिनेसा हुआ. और उसी से बाद में फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्वतंत्र भारत की बात सबसे पहले एक ईसाई ने की. उनका नाम है विश्व बांधव उपाध्याय. वो बंगाली क्रिश्चियन ब्राह्मण ईसाई थे, और उन्होंने 1896 में एक पत्रिका निकाली, इसका नाम था दर्पण, और 1902 में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात लिखी और स्वदेशी चर्च की बात की, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल में डाल दिया. एंड ही डाइड इन जेल बिकॉज ही रोट अबाउट फ्रीडम. तो देश का पहला स्वतंत्रता जो जिसको कहना चाहिए सेनानी, जिसने जान दी, वो एक क्रिश्चियन था. ये बात बहुत कम लोगों को पता है. इसी तरह जो हम किताबों में अक्सर पढ़ते हैं कि तिलक ने ये नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है. हाँ, तिलक को उसकी प्रसिद्धि मिली, लेकिन उसको आइडिया देने वाला काका जोसेफ बैप्टिस्टा वसई का क्रिश्चियन कैथलिक था, जिसने 1902 के अंदर आयरलैंड के अंदर लॉ पढ़ा, और उस समय आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था. उसी को वो तिलक के दोस्त थे. जब वो भारत लौटे तो उन्होंने तिलक को कहा कि जैसे आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चल रहा है, वैसे यहाँ होम रूल आंदोलन चलाना चाहिए. और उसी से वो नारा निकला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. तो ये जो स्वराज का नारा भी हम पहले हमारे क्रिश्चियंस ने दिया, और वो भी एक कैथलिक ने दिया. इसके बारे में मुझे जानकारी बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं. लेकिन शोलापुर के अंदर एक मराठी राइटर ने 1956 में एक किताब लिखी, जिसके अंदर लिखा है कि काका, उसका टाइटल है काका जोसेफ बैप्टिस्टा. और वो उस मराठी किताब में उसका पूरे डॉक्यूमेंट सहित लिखा हुआ है कि किस तारीख को कैसे कैसे उन्होंने तिलक की मदद की. और ही वॉज द वन, जोसेफ बैप्टिस्टा वॉज द लॉयर. ही बिकेम मेयर ऑफ बॉम्बे इन 1924, और ही फॉट द केस ऑफ तिलक व्हेन तिलक वॉज प्रोसिक्यूटेड. तो ये चीज़ें जो हैं ये सब इस किताब के अंदर हैं, और ऐसी कई चीज़ें हैं. क्योंकि अक्सर हमको क्या कहा जाता है, अरे ये ईसाई तो विदेशी हैं, ये विदेशी धर्म है, ये विदेशी का एजेंडा लेके चला रहे हैं. ये बिल्कुल गलत फॉल्स प्रोपेगेंडा है.
वी शुड बी प्राउड एज ए इंडियन एज ए क्रिश्चियन एज ए कैथलिक that we are the initiator of new modern India. आज जो भारत दिखाई दे रहा है वो सिर्फ हमारे कारण है। यदि हमारी स्कूलें ना होती तो आज कोई दलित, कोई बैकवर्ड, कोई आदिवासी शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा होता। यदि आज हमारे चर्च ने या मिशनरीज ने मेडिकल संस्थाएं ना शुरू की होती 1890 के अंदर, तो कोई नर्स, कोई डॉक्टर ईसाई नहीं होती, कोई किसी को नहीं मिलता। तो ये जो आम लोगों तक मेडिसिन को पहुंचाने का काम भी वो चर्च ने किया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं यही कहूँगा कि हमें हमारे इस बात की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आज उस दिव्य आत्मा को, स्वर्गीय आर्च बिशप एंजेलो फर्नांडिस को याद करना चाहता हूँ। जब मैं 1973 में संजीवन का एडिटर था, वो हमारे संरक्षक थे, और मैं जब उनके पास एडवाइस के लिए गया तो मेरे दिल में था कि एक जो है ओनली ट्रूथ कैन सेव यू। तो मैंने उनको कहा कि आर्च बिशप जी मेरा तो ये मोटो है। बोले ये ठीक है बेटा, लेकिन और पढ़ो। तो उन्होंने मुझे कहा पीटर 1 वर्सेस 13 to 15, उसका लिखा है डिफेंड योर फेथ व्हाट यू बिलीव एंड बिफोर डिफेंडिंग यू शुड नो व्हाट यू आर डिफेंडिंग। तब मैंने ये किताब के बारे में सोचा कि हमें ये जानना चाहिए, प्रत्येक ईसाई को, प्रत्येक कैथलिक को, प्रत्येक भारतीय को हमें बताना है कि व्हाट इज ग्रेट अबाउट क्रिश्चियनिटी। थैंक यू वेरी मच।